efforts at the SSC Meritorious Awards 2024. It's indeed a moment of pride and joy for all of us. محنت اسے کہتے ہیں جو مقدر کو ہنر میں بدل دے. جذبہ اسے کہتے ہیں جو خواب کو حقیقت میں بدل دے. So to commence our program, let's us seek blessings and peace through the recitation of Holy Quran. I invite Huzaifa of Ideal International Student. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. Privilege to invite our esteemed guests to the dais. Kindly welcome them with a huge round of applause. First, I invite the President of the function, Mr. Tariq Ansari Sahab, Chairman, Telangana Minority Commission, to please come up on the stage. Mr. Tariq Ansari Sahab is the Chairman of the Telangana Minority State Commission. In this role, he looks into the cases that pertain to the deprivation of rights and safeguards for those belonging to minority communities, including Buddhists, Christians, Muslims, Sikhs, Jains and Parsis. Now it's also an honor to invite our guest of honor, Mr. S.A. Huda Sahab, retired Director General of Police, Andhra Pradesh, to the dais. Mr. S.A. Huda Sahab is a distinguished IPS officer of the 1979 batch. He also served the Director General of Police, Law and Order. His extensive services record and dedication to the law enforcement and commendable. I would also like to invite the President of POMI, Mr. M.S. Farooq Sahab, on the stage. And finally, I invite the General Secretary of POMI, Mr. Khalilur Rahman Sahab, to please come up on the stage. Now, welcome address. To officially commence the proceedings, now I invite Mr. Khalilur Rahman, General Secretary of POMI, for the welcome address.
Bismillahirrahmanirrahim. Respected President of the today's function, Janab Tariq Ansari Sahab, Chairman Telangana Minority Commission, respected Janab S.A. Huda Sahab, retired Director General of Police, AP, respected President of the COMI, and today's convener, Janab Hidayat Sahab, respected members of the COMI, respected directors of the various schools, distinguished guests, dear parents, teachers, and dear students. Good evening, everyone. Today, on this special occasion of the SSC Meritorious Award function, I feel privileged to welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. And as the General Secretary of the COMI and on behalf of the whole unit of the COMI, I am extremely honored to roll out the red carpet for you all on this prestigious moment. As we all know, today we gathered here to award our talented, young and the future citizen of our nation who excelled out in the SSC examination with the distinguished results. On the outset, I would like to congratulate all the SSC toppers from the various schools. It has been a proud moment for you all as your tireless efforts and the hard work brought the best laurel for you. Your parents, your teachers, and for your school, I congratulate all of you for your big achievement and the glorious result. Today, COMI is honoring the SSC toppers with their achievement awards to the school toppers from each school and the students who scored the top position in all the 6 subjects. Totally, we are giving the 7 awards to each school. I welcome our esteemed parents and all the invitees of the today's event who are here from the far and near. I hope this day find out you in the best of the spirit. I appreciate the staff members from the various schools who look forward in carrying all these activities. It is the teachers who effort which contribute in raising the overall growth of the students and in the building their future. Let us give them a remarkable applause, and I request all of you to give a hand for your teachers also. Alhamdulillah, Allah has chosen us in the cause of the education, and we work with the intention to spread education by bringing out the best from the students. On behalf of the whole unit of the COMI, I take this opportunity to wish all the students present here to have a great years ahead wherever you are and in the whatever sphere of the life and whichever the parts of the world you are. I wish all the students to be the better citizen of the country. Dear children, work sincerely and be honest in all the matters. Now you are going to step in the new world where you need to learn lessons and move your sincerely. Try harder to achieve your goal, chase your dream, focus on your career. Many people want to achieve success in the life, but it is easier said than done. The simple fact that you need to be different from the others and be successful in the life. Every person is an ordinary person, but his or her efforts and the sincerity makes him or her the extraordinary person. Check yourself and judge yourself how far you are sincere with your action. Serve the nation in the best possible way.
Don't be behind the money. Allah will reward you for your sincerity, for good deeds and for the good intentions. Discipline is the very basic of the human progress. Discipline is necessary in the art field of the life. In fact, life is the best enjoyed only if the discipline is maintained. Allow me to render my gratitude to each and every one of you for finding time to be with us today. It takes a lot of sacrifice to set aside time out of your busy schedules and come over to such a function. I do hope that the experience of these days will be worth the sacrifice you have made. Thank you for being here today, and thank you to each and everyone who is present here from the far and near. We thank Almighty Allah for giving us the opportunity to contribute in the cause of education. Inshallah, we will extend and endure behind our life and reach many generations to come. May Allah help us to do good deeds and accept our deeds which are doing in the cause of the education. Ameen. May Allah be with us and we go on. Thank you very much. Thank you, Mr. Khalid ur Rahman sir. Now I invite Mr. M.S. Farooq, President of QOMI, to address the gathering. The most beneficent and the most merciful, who has made man the supreme creature, and Durood Salam on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable President of the function, Janab Tariq Ansari Sahab, Chairman, Telangana Minorities Commission, Guest of Honor, Janab S.A. Huda Sahab, retired Director General of Police, Andhra Pradesh, Honorable Office Bearers, General Secretary, members, respected parents, teachers, and meritorious students. It is my privilege to stand before you today as the president of this esteemed state organization. I am thrilled to see so many talented young minds gathered in one place, and we are honored to felicitate your achievements. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed guests who have spared their precious time to grace this event today. Your presence is a testament to your commitment to education and the betterment of our society. To our organization members, General Secretary and Convener, I extend my sincere appreciation for your tireless efforts in making this event a success. Your dedication is the backbone of our organization, and I am grateful for your unwavering support. Today we gathered here to celebrate the achievements of our meritorious students who have excelled in their class 10th examinations. I congratulate each and every one of you on your well-deserved success. Your hard work, perseverance, and determination have paid off, and I urge you to continue with the same enthusiasm and dream big. As you move forward in your academic and professional journey, remember that your career is not just about personal growth, but also about serving the society and the nation. I encourage you to consider a career in bureaucracy, where you can serve the country and make a positive impact on the lives of millions. To the parents who have supported their children every step on the way, I offer my sincerest appreciation. Your unwavering support and guidance have been instrumental in your child's success. I urge you to continue encouraging and motivating your children to reach for the stars. As we celebrate the achievements of our meritorious students, let us also acknowledge the importance of obeying our parents and teachers.
their guidance and wisdom are invaluable, and we must always respect and obey them. One thing Khalil Bhai has forgotten, that we have decided, Qawmi has decided to honor the parents this time. Because they are the backbone, and they are to support you to the students. Then only they got the excel. To our meritorious students, I offer these final words of advice. Pray for guidance, obey your parents and teachers, and always strive to give something back to your parents, state, and country. Once again, I congratulate our meritorious students and their parents on their achievements. Let us work together to create a brighter future for ourselves and for our nation. Last but not the least, I personally congratulate the General Secretary, the convener, office bearers, and my special thanks to my colleague, Mr. Mohammad Naziruddin, who is the executive member, who has been working day and night. अस्सलामुअलैकुम। जनाब अंसारी साहब, हमारे अब्दुल अजीज यंग चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन, अलीम साहब, हिदायत अली साहब, स्कूल के डायरेक्टर्स, पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर्स, पेरेंट्स, बच्चे और बच्चे लोग कम नज़र आ रहे हैं, बच्चियाँ। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, जो फॉर्मेट होता है हमारे अवार्ड्स फंक्शन का, एक आप चाहें न चाहें, हम लोग जो बैठे हैं, जितने यहाँ पर स्टेज पे आपको सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपको ये अवार्ड्स मिलेंगे। तो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ लोगों से कि भाई पहले अवार्ड दे देते हैं लोगों को ताकि सुकून से बैठें। बोले साहब अगर दे देंगे तो फिर हॉल खाली हो जाएगा सबके लिए, और होता भी है। खैर ज़रा सा माहौल इतना सीरियस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पहले तो मुबारकबाद जो बच्चे और बच्चियाँ एसएससी में टॉप किया है। एक तो वो 10 पॉइंटर कुछ होता है शायद, सारे सब्जेक्ट में 10 पॉइंट्स। पिछले दिनों एक बच्ची से मुलाकात हुई थी एक अवार्ड फंक्शन में, और फिर सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स होते हैं, स्टेट टॉपर्स होते हैं, फिर स्कूल टॉपर्स होते हैं। तो काफ़ी कैटेगरीज हैं एसएससी के टॉपर्स को अवार्ड्स देने में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये जो मरहला है, ये आपका पहला स्टेप है ज़िंदगी में, कहिए एजुकेशनल फील्ड में, कहिए या दुनिया में, कहिए कि एसएससी क्लियर करना, ये पहला स्टेप है आपका ज़िंदगी का। उसके बाद मरहले और भी हैं, इंटर करना पड़ेगा आपको 2 साल, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अगर चाह रहे हैं करना, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। तो कंपटीशन से आपको छुटकारा नहीं है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूंगा, जस्ट आप जहन में रखिए, सब गूगल कर सकते हैं आप, कोई नई चीज़ मैं बोल नहीं रहा हूँ। आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन से सब चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। ये है कि नीट में इस साल 24.06 लाख बच्चे अपियर किए नीट में, जो मेडिकल के लिए। उससे 13.16 लाख क्वालिफाई किए, यानी ऑलमोस्ट 54.6%। है वो और बात है कि कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, पेपर लीक हो गई थी, शायद कैंसिल होगा। अभी बात हो रही थी मंजूर साहब से कि शायद कैंसिल भी हो जाए, फिर से आप लोगों को देना पड़ेगा नीट एग्जाम। उसमें वो भी था कि कोई महाराष्ट्र की बच्ची जो उर्दू मीडियम की है, मदरसे से पढ़ी है, वो टॉप करी थी। मैं गूगल कर रहा था आते वक्त कि भाई वो वाकई सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें
नेट में हो या सोशल मीडिया में हो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से आया उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं, तो नाम कहीं आ नहीं रहा था। इसमें भी आपको ताज्जुब होगा, स्टेट वाइज टॉपर्स हैं नीट में, प्लस आपको ताज्जुब होगा 99.9% रखे तो बच्चे बच्चियां भी हैं नीट में। लेवल ऑफ कंपटीशन देखिए कितना शदीद और कितना सख्त हो गया है। तो एक बार एसएससी से निकल गया, सोचिए निजात हो गई, जन्नत मिल गई, होगा नहीं ये, अब तो शुरुआत है कंपटीशन का। इसी तरह मैं आपको और स्टैटिस्टिक देता हूँ, जैसे जेईई है जो इंजीनियरिंग के लिए आप तैयारी करते हैं। खैर अभी आपको 2 साल इंटरमीडिएट करने के बाद ये सब मरहला आपको तय करना है, बट अभी से जेईई में 12.21 लाख अपियर हुए हैं, 12 लाख बच्चे अपियर होते हैं पूरे कंट्री का, ये ऑल नेशनल लेवल पे, और क्वालिफाई किए 2.5 लाख है। देखिए क्या नंबर्स, जरा आप क्रंच करिए अपने जहन में। इसी तरह कैट में, अच्छा जेईई में भी वो भी मरहला है कि पहले आप एक मेन देते हैं, उसके बाद फिर पार्ट 2 देते हैं, वो सब है उसमें। एक बार आप वंस टू ट्राई, अगर जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या क्या मरहले हैं, तो आपको अगर नेट सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे डिटेल्स सारे। इसी तरह कैट में जो IIMs के लिए जाते हैं बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, 3.28 लाख अप्लाई किए थे पूरे इंडिया में, 2.88 लाख अपियर किए, और सीट कितनी IIM की 5,500 सीट। ओके, इसी तरह आपको सिविल सर्विसेज का बता दूं जरा चलते चलते, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिविल सर्विसेज से है। पिछले साल 10.16 लाख अप्लाई किए और बैठे 5.5 लाख, 5.9 लाख बैठे उसमें, और प्रीलिम्स में 14,000 निकले जो रिटर्न के लिए गए नेक्स्ट लेवल पे, और फिर इंटरव्यू के लिए 2,900 बच्चे, यानी 10 लाख अप्लाई किए और पिकअप किए 2,900 बच्चे पिकअप के बच्चे हम बात कर सकते। और वैकेंसी कितने थे? 1160, 10 लाख से 1160 बच्चे। इसीलिए मसूल एकेडमी में हम लोग होते हैं क्रीमे दे लाख पे, यानी मलाई छाटते जैसे हैं, दूध सब ऐसे सिविल सर्विसेज के लिए जो निकालते हैं बच्चे। आपको चूंकि अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक उड़ीसा से है, और पिछले इलेक्शन वहाँ पर असेंबली का भी पार्लियामेंट का 1 साल हुआ, और चूँकि मेरा स्कूलिंग कटक से हुआ, आपको ताजुब होगा, गूगल चेक कर सकते हैं, इसमें सोफिया फिरदौस एक बच्ची है जो MLA बनी है इस बार कटक से, आप ही की तरफ बच्ची है। इंजीनियरिंग करी बच्ची भुवनेश्वर से, फिर IIM बेंगलोर से MBA करी, एग्जीक्यूटिव MBA। हालांकि उसके वालिद साहब MLA थे कटक में, चूँकि कुछ लीगल इश्यूज थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी बच्ची को खड़ा करता हूँ। इस बार MLA बनी, आप गूगल करिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। आप लोगों के लिए एक इबरत है, हमारे वहाँ उड़ीसा में हमारी जो परसेंटेज है 1.8 1.9 है, 2 से ज़्यादा नहीं है हम लोग वहाँ पर अपने लोग, और हैदराबाद में 30% है। कभी आपने सुना है कि आपके हैदराबाद से कोई MLA, लेडी MLA, बच्ची अपनी MLA बनी है? अभी तक नहीं बनी। सोचने की बात, किसी पे तनकीद नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है, उड़ीसा से एक अपनी बच्ची MLA बन रही है, आज ऐवान में जाके बैठेगी, पॉलिसी डिसीजन लेगी, पॉलिसी डिसाइड करेगी, और हमारे यहाँ से 30% हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग एक बच्ची को हम लोग अपने ऐवान में नहीं भेज सकते। इसी तरह इतरा चौधरी हैं, और कहाँ से हैं? कैराना एक जगह है वेस्टर्न यूपी में, जाट बेल्ट कहलाता है,
जहाँ पिछले इलेक्शन में काफी दंगा हुआ था वहाँ इकरा चौधरी इस बार कैराना से MP बनी है। अगेन आप गूगल सर्च कर सकते हैं। हालांकि उनके वालिद साहब भी MP रहे वहाँ, उनकी वालिदा भी MP रही वहाँ, उनके भाई MLA हैं अभी। ये बच्ची अब MP बनी कैराना से, ये गूगल चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ एक आरिज अहमद साहब हैं, IAS में हैं, 95 बैच के हैं, आंध्रा के ही हैं, असम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। वो एक 3 साल से मुहिम चला रहे हैं, ये अर्ली गोल सेटिंग और ड्रीम बिग, यानी सभी एक अकबर अलाहाबादी का कॉल है कि BA पढ़े, नौकर हुए, पेंशन मिली हो, मर गए। या तो ये करना है आपको, या फिर आप ड्रीम बिग करिए कि क्या बनना है जिंदगी में, कहाँ पहुँचना है और कब से तैयारी शुरू करनी है। अर्ली गोल सेटिंग होना चाहिए और ड्रीम बिग होना चाहिए। इसके लिए वो मुहिम चला रहे हैं। आज ही इनफैक्ट एक सेशन हुई इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में। हर महीना एक संडे या सैटरडे करते हैं दिल्ली में। हैदराबाद में भी शुरू हुआ है। यहाँ मदीना सेंटर में 2 सेशन हो चुकी है, अब 3rd सेशन आने वाली है। मैं आपको डिटेल में दूँगा अगर आप आना चाहें। स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन सेशन है, फिजिकल सेशन नहीं है। कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें फिजिकल सेशन करते हैं हम लोग। एक सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड या सर्विंग, IAS IPS के, और एकेडमिक्स प्रोफेसर। एकेडमिक्स जो हैं स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो ये हमारा ज़ख़ीरा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, हमारे कौम का असासा है। उनसे लेते हैं एकेडमिक्स को और सिविल सर्वेंट्स को लेते हैं। लोग इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले तो जितने बच्चे आते, बच्चियाँ आती हैं, उनका अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। पूछते हैं कि बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। तो फर्स्ट सेशन में भी है, एक ग्रुप था जो डॉक्टर्स थे काफ़ी, और एक ग्रुप था इंजीनियर्स थे। तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स यही चाह रहे थे कि भाई अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएं। इंजीनियर्स चाह रहे थे अपनी कंपनी खोलें। ये ज़रूरी नहीं, फारूक साहब ने ये भी कहा कि ठीक है सिविल सर्विसेज के लिए भी आप ट्राई करें, लेकिन जो गोल्स हैं उसमें 2 तरह के हैं। एक तो आप नौकर पेशा बन सकते हैं, उसमें 20-22 गोल्स हैं, लिस्ट की है। उसमें आगे साहब पूछते हैं भाई और कुछ ऐड करना है, तो लोग अपना आइडिया देते हैं भाई ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वो कहते हैं भाई ये नंबर में देखिए, ये उसमें आ जाता है। इसी तरह दूसरा जो सेट है, जो आप जॉब देने वाले बन सकते हैं, अच्छे स्कूल चलाएं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ चलाएं, अच्छे एजुकेशनल सेटअप हो आपका, कंपनीज खोलें, वो भी है। आप नौकर या तो नौकरी पेशा बन सकते हैं या नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ये 2 गोल्स हैं। तो इसी तरह ये आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। ये मानता हूँ मैं, ये गोल्स चेंज होते रहते हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक, आपके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, अगर आपको ज़बरदस्ती आपको माँ बाप इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी अर्ली गोल सेटिंग के सेशन में एक बच्ची मानू से है, PhD कर रही है। तो वो कहने लगी कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, मैं कुछ चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो हर ओपन सेशन में अक्सर ये होता है, लड़कियों का अक्सर ये होता है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई पढ़ लिए, चलिए अब शादी कर लो, घर गृहस्थी कर लो, अपना चूल्हा चक्की संभालो। अक्सर इसलिए हम लोग ओपन सेशन में उनसे बात नहीं की, मैंने अलग से उनसे बात करी बच्ची से। वो ये चाहते, माँ बाप चाहते थे कि आप IAS बनो। ये चाह रही थी बच्ची जो है मानो में जो PhD कर रहे उर्दू में, वो ये चाह रही थी कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनूँ, इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स करूँ, और कर रही है PhD उर्दू में।
ये प्रॉब्लम हो गया था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया ठीक है इसको काउंसलिंग करवाते हैं। इससे पहले महबूब नगर से एक बच्ची जो इस बार सिविल सर्विसेज में लिस्ट में आई है, इतिहाद नाम, इस बार सिविल सर्विसेज में आई महबूब नगर से बच्ची। इसके पहले सेशन में भी उनका भी यही जवाब था, वहाँ भी वही हुआ कि बच्ची ये कह रही थी मैं पढ़ना चाह रही हूँ और माँ बाप चाह रहे कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ। तो उनका ये सलाह था कि भाई आप देखिए माँ बाप से तो आप लड़ नहीं सकते क्योंकि आपको पाला पोसा बड़ा किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ होता है कि भाई माँ बाप कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, ये अलाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं और एक केस स्टडी बताता हूँ। पंजाब में एक बच्ची है, कारपेंटर की बेटी है और इंटर में बहुत अच्छे नंबरों से 95% या 98% रखती है। तो उसको और अपने ही लोग हैं, कलमा को हैं पंजाब में, तो वो ही चाह रही थी मैं पढ़ूँ जाके कॉलेज में, और माँ बाप चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग कॉलेज छोड़ेंगे नहीं आपको, उधर वहाँ से दूर है कॉलेज, जाना इशू होगा। यहाँ से आपको ताजुब होगा, एक पंजाबी लेडी हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी की हैं, वो फंडिंग कर रही हैं बच्ची की पढ़ाई की, यहाँ से हैदराबाद में बैठ के। और हल ये निकला कि चलिए भाई इनको कॉलेज नहीं भेजेंगे, पढ़ना चाह रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, तो इनको ऑनलाइन यानी डिस्टेंस एजुकेशन से इनको कराया जाए ग्रेजुएशन। वो मैथ्स टीचर बनना चाह रही हैं। आपको ताजुब होगा टीचिंग प्रोफेशन में बहुत वैकेंसी हैं, स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज पे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत वैकेंसी हैं। अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, यूएस में भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत वैकेंसीज हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाते हैं। आपको ये भी ताजुब होगा कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी लोग बैंक में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स आरिफ साहब ने वो किया था, रिसर्च करके निकाला था कि भाई जो इंजीनियर बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं सिविल सर्विस में कैसे आती हैं। हम लोग सोचते हैं इंजीनियर हैं तो आ जाएंगे, 60% जो इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे बच्चियाँ सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, 60%। वो इसलिए कि इम्तिहान देते वक्त वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं लेते, वो लेंगे लिबरल आर्ट्स, कोई हिस्ट्री ले लिया, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, कोई सोशियोलॉजी ले लिया, इस तरह के सब्जेक्ट लेके। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद नंबर क्रंचिंग बिकम्स इजी। अगर 4 साल आपने रगड़ा लगा के इंजीनियरिंग किया है तो बाकी सब सब्जेक्ट, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इसीलिए इंजीनियरिंग किया, वही जो कहते हैं ना पढ़ो फांसी बेचोते। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस किया और लेकिन फिर पुलिस में आ गए, तो पढ़ो फांसी बेचोते वाला हिसाब हो जाता है। तो इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी सोशल साइंसेज सब्जेक्ट लेते हैं और सिविल सर्विस लिखते हैं और सिविल सर्विस में आते भी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अंसारी साहब को भी सुनना है, अच्छी बातें करते हैं वो, और मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी और मेरी दुआएं आप लोग अच्छा करें करियर में। अब तो 2 साल इंटरमीडिएट में डिसाइड करना पड़ेगा आपको, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, वो अभी डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर गोल जो फोकस आ गया आपका, फिर इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Huda sir. So, golden words from your side. Now it's our time from Hayat Junior College. A small address by Mr. Hakim. warahmatullahi wabarakatuh. इस पर तशरीफ फरमा मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब तारिक अंसारी साहब, ऐसे हुदा साहब, खलील रहमान साहब और हाज़रीन महफिल, बेहद मुबारकबादी का एक मौका है कि एसएससी के तलबा और तालिबात ने बड़ी सख्त मेहनतों के साथ कामयाबी हासिल की और इनकी मेहनतों के पीछे पेरेंट्स का भी बराबर असर रहा और बिहम्दिल्लाह कामयाबी मैं तलबा से कहूँगा
کہ یہ صرف ابھی آپ کا پہلا اسٹیپ تھا جو آپ نے کامیاب کیا. یہاں سے ابھی بہت سی منزلیں ہمارے لیے موجود ہے. جیسا مجھ سے بیشتر مقرر جناب ایسے ہدا صاحب نے ایک بہترین انداز میں میں یوں کہوں کہ کم وقت میں آپ نے سمندر کو کوزے میں بھرنے کی کوشش کی ہے, ایک قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قوم بیدار ہوگی. اس کے لیے ہم تمام کو مل کر کام کرنا ہے. جیسے ہمارے خلیل الرحمان صاحب نیو ماڈل اسکول کے کرسپونڈنٹ پرنسپل رہے ہیں, آپ کے والد بزرگوار کے دور سے زمانے سے کام چل رہا ہے. اولڈ سٹی کے ایریے میں حیدرآباد میں اس وقت جہاں پر تعلیم کے لیے بہت کم وسائل تھے, ایسے وقت میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا آپ کے والد بزرگوار نے. پھر آپ نے, میں مبارکباد دیتا ہوں خلیل الرحمان صاحب کو اور آپ کے تمام اسٹاف کو. ساتھ ہی ساتھ حیات جونیئر کالج اور شالی بنڈا کی جانب سے مجھے بھیجا گیا behalf of my principal. میں آپ کے درمیان میں حیات کالج کا مختصر تعارف پیش کروں. یہ حیات کالج کا اسٹیبلش 2019 میں ہوا تھا اور الحمدللہ پہلے ہی سال حیات جونیئر کالج نے اسٹیٹ رینک حاصل کیا IBC MPC میں. الحمدللہ تقریباً 4 سالوں سے الحمدللہ اولڈ سٹی اور حیدرآباد کے لیول پر حیات جونیئر کالج کے بعد پھر ڈگری کالج اور اس پھر ڈگری کالج میں بھی الحمدللہ اس سال ہمارا رزلٹ کافی بہتر رہا. ساتھ ہی ساتھ جہاں پر عصری تعلیم کے لحاظ سے بہت ضروری تعلیمات پر فوکس کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ JEE اور نیٹ کے اسپیشل کوچنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے لانگ ٹرم کے لیے. اور اس بار الحمدللہ حیات جونیئر کالج کے طالب علم نے نیٹ میں 500+ مارکس لا کر الحمدللہ بہترین مظاہرہ کیا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یقیناً میں ہمارے ایسے ہدا صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ اولڈ سٹی سے بھی انشاءاللہ آپ جیسے توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ بہترین رینکس ملیں گے. کافی بچے بہت محنت کر رہے ہیں, خصوصیت کے ساتھ طالبات بہت محنت کر رہی ہے. ہم آپ تمام کے ساتھ ہیں. حیات جونیئر کالج کی جانب سے میں ایز اے وائس پرنسپل حیات جونیئر کالج شالی بنڈا آپ تمام کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے حیات جونیئر کالج موجود ہے. اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. Thank you, Nuri sir. Now finally, I invite the President of the function, Janab Tariq Ansari Chairman Sahab, from Telangana Minorities Commission for his presidential address. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. It's an honor and privilege for me to be a part of this facilitating program. قومی کی جانب سے کنفیڈریشن آف مائنارٹیز انسٹیٹیوشنس, اس لیے بھی میں جو ہے ایم ای کے بھی پروگرامس کو سارے فاروق صاحب اور ہمارے محترم قابل شخصیت ہمارے درمیان انور الہدا صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے شرکت کی تھی. پھر ریاست میں تشریف فرما خلیق الرحمان صاحب, ہدایت اللہ صاحب, ہمارے قومی کے جو ہے ذمہ دار صدر جناب فاروق ایڈوکیٹ صاحب, اور پہلی سب میں تشریف فرما ماہر تعلیم خاص طور پہ ہمارے ایم جو ہے انور صاحب جو پروفیسر بھی ہیں آپ, اور ماہر تعلیم, اور مائی ڈیئر ونڈرفل اسٹوڈنٹس اور پراؤڈ پیرنٹس, ویری ویری گڈ ایوننگ ٹو یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یقیناً آج میرے لیے قابل فخر کی بات ہے کہ میں آج ایسے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں جہاں پر جو ہے سینکڑوں طلبا جنہوں نے اپنے اسکول کا جو ہے نام روشن کیا ہے یہاں پر موجود ہے, اور ان کو جو ہے یہاں پر تحیت کے طور پر, ان کی مدد افزائی کے طور پر یہاں پر
بلایا گیا ہے، تو یقیناً قابل فخر ہے ہمارے لیے بھی، ذمہ داروں کے لیے، پھر خاص طور پہ پیرنٹس بھی یہاں پر موجود ہے، قابل فخر ہے آپ لوگ بھی، اور خاص طور پہ جو ہے انتظامیہ، مختلف اسکولوں کے ذمہ داران، سب کو جو ہے میں قابل مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یقیناً آپ لوگ کی کوششیں، کاوشیں، آپ لوگ کی قربانیاں، آپ لوگ کی ڈیڈیکیشن جو ہے یقیناً بچوں کو جو ہے اعلیٰ مارکس لانے پہ جو ہے بہت ساری جو ہے مدد کی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں اس موقع پہ اہم بات یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے it's very important to congratulate the students who have done well in the 10th class exam. Like I feel I should never miss this opportunity. میں ہمیشہ جو ہے ایسے موقع مجھے فراہم ہوتے ہیں تو میں اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. آج میں کافی مصروفیت تھی حیدرآباد سے باہر، تو جیسا میرے فاروق صاحب نے بتایا کہ جو ہے we have some program for the very few students، تو میں نے پروگرام کو کینسل ملتوی کر کے جو ہے میں اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا میں بہتر کروں گا. who get good marks in academics، جو اچھا پڑھتے ہیں، قابل بنتے ہیں، because we do have a group of colleges. میں بھی جو ہے کالجز کا ذمہ دار ہوں کہ ہاں میں ڈائریکٹر آف دا کالجز. تو تعلیم کی اہمیت میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہے آج کے مشکل دور میں تعلیم کی کتنی ساری اہمیت ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے تعلیم کو حاصل کر سکے، وہ بھی ایتھکس کے ساتھ، مورلز کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ. ہم تعلیم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو مائی ڈیئر ونڈرفل اسٹوڈنٹس، well done on your exams. I hope this is just a beginning of the progressive journey ahead. You have passed your exams with flying colors. May you keep reaching the more milestones in the coming days as well. تو ایک میسیج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کی اس موقع پہ brilliant job on getting such great marks. Your commitment to the excellence is commendable, my dear wonderful students. Your commitment to the excellence is very commendable. Keep shining bright. اور اس کے بعد میں جو ہے میں خاص طور پہ جو ہے I would like to thank all the parents, teachers, etc. Who have stood behind you to achieve this wonderful good academics. I think it won't be possible without your support, guidance and encouragement. Because my wonderful dear students, real education help the people to equip themselves for a dignified and a meaningful life. کیونکہ جو ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو جو ہے میرے ڈیئر بچوں، ہم کو ضروری ہے کہ جو ہے تہذیب، ہم کو جو ہے تربیت بھی بہت ضروری ہے. آپ کے یہاں پر پیرنٹس بھی ہے، قابل فخر والدین ہیں، اساتذہ ہیں. میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ہمارے بچوں کو آج کے اس مشکل دور میں آپ تہذیب بھی سکھائیں، تربیت بھی دیں. کیونکہ آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جو اس ماحول میں نئے نئے تماشے بھی پیدا ہوتے ہیں. لوگ جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے دے کر جو ہے موٹیویشنل پروگرامس اٹینڈ کرتے ہیں اور موٹیویٹ ہونا سیکھتے ہیں اور اورینٹیشن ہونا سیکھنا چاہتے ہیں. باہر جا کے لاکھوں روپے دے کے موٹیویٹ سیکھ رہے ہیں. تو میں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے بچے جو ہے ہماری والدین سے، اپنے بڑوں سے جو ہے موٹیویٹ ہونا چاہیے. ان سے جو ہے اخلاق سیکھنا چاہیے، ان سے تہذیب سیکھنا چاہیے. بلکہ جو ہے ہزاروں روپے دے کر جو ہے آپ باہر جو ہے لوگوں سے موٹیویٹ سیکھنے جا رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو یقیناً ہماری والدہ کی گودی جو ہے بہترین درجگاہ رہتا ہے. تو ہم کو جو ہے سیکھنا چاہیے ہمارے والدین سے تہذیب. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہے میں I have a privilege of the youngest chairman of the Telangana as well as in India. میرا کمیشن چیئرمین یہ ہے کہ جو ہے جیسا میں ہدایت صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہے ذمہ داریاں کیا رہتی ہیں. میری ذمہ داری یہ تھی کہ جو ہے I work for the distressed minorities، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو ستائے ہوئے لوگ رہتے ہیں سماج سے، معاشرے سے مختلف، جس میں جو ہے کرسچنس بھی آتے ہیں، مائنارٹیز میں کرسچنس آتے ہیں، بدھسٹ آتے ہیں، جین آتے ہیں، سکھ آتے ہیں. تو میری ذمہ داری یہ ہے جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کمیشن کا دروازہ کھل جاتا ہے.
शुक्र अदा करता हूँ कि जो है मुझे इसी यंग एज में जो है कि अपॉर्चुनिटी दी है कि जो है मैं कमीशन के लिए काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ। और मैं 1 साल हुआ मैं अकाउंट हो गया, तो जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं ईमानदारी से काम करूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ और एथिक्स को, वैल्यूज़ को, मोरल्स को जो है मैं मद्देनजर रखते हुए जो है काम करना चाहता हूँ। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी जो है अभी एक पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप लोग की ज़िंदगी की। तो आप लोग जो है 10th में जो इतने काबिल मार्क्स लाए हैं, तभी आप लोग को जो है आप लोग के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई गई है। आप लोग जो है आप लोग की हिम्मत अफजाई कर सके, आपके वालिदैन की हिम्मत अफजाई कर सके, आपके असातिज़ा की हिम्मत अफजाई कर सके। तो वंडरफुल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़िंदगी में एक अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि जो है प्लीज़ डोंट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस। ज़िंदगी में जो है काइंडली ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज़। तो ये बहुत अहम चीज़ है अपनी ज़िंदगी से आप अपनाइए। मैं भी जो है सियासत में हूँ तो भी मैं ईमानदारी से हूँ। मैं जो है ना ही कभी अपने ईमान का सौदा कर सकता हूँ, ना ही कभी मैं अपनी ज़मीन का सौदा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप अपने संभाल के रखिए, ताकि अनवर हुदा साहब ने बताया कि जो है डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में जो है तालीम के साथ साथ आप एक सोशलिस्ट बनिए, आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, आप IAS बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर्स बनिए, आप IPS में जाइए, आप पॉलिटिक्स में आइए, आप लॉ पढ़िए। आप इतने सारे जो है आप लोग यकीन है उनकी तकलीफ से जो है अहम यंग जो लोग आजकल पॉलिटिक्स में आते हुए हैं, किसी ने MP बना है कि वो MLA बना है, तो आप लोग जो है कर सकते हैं ताकि हम समाज की सेवा कर सके, हम जो है कौम की सेवा कर सके, हम कौम की खिदमत कर सके। ज़रूरी है हमको जो है साथ के साथ हम ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें, ईमानदारी से तालीम हासिल, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं हमको चाहिए कि जो है हम ईमानदारी से और दियानतदारी से दें, ताकि माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ट्राई टू गेन मोर नॉलेज। अभी मैं बैठा था जो है हमारे TA साहब ला के जो है ये लाइन दिए हैं, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जो यकीन है मेरे दिमाग उनसे हट गई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ट्राई टू गेन मोर नॉलेज, स्टे स्ट्रॉन्ग, work hard and focus on your goals in the areas which you are so passionate। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग को जो पसंद है लाइन, आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं कि जो है आप किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर जाना चाहते हैं, और आज के इस दौर में इतना जो है कॉम्पिटिटिव दौर है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का दौर है, तो हमको चाहिए कि जो है हम वर्क हार्ड करें, जो हमको पसंद है वो चीज़ में जो है जाए। कि प्लीज़ कीप दिस इम्पोर्टेंट थिंग इन योर माइंड दैट to be successful it takes time, to be confident and honest, believe in yourself and never choose शॉर्टकट रास्ते जो है कभी ना चुने। मेहनत करिए, लगन से जो है मेहनत करिए, डेफिनेटली जो है कामयाबी आपके कदम चूमेंगी डेफिनेटली। और जो है ये बात मैं घड़ी घड़ी ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है आप अपने एथिक्स को, मोरल्स को, वैल्यूज को जिंदा रखिए। अगर आपके पास अगर ये जिंदा नहीं तो फिर आप भी जिंदा नहीं, क्योंकि अगर सर्व करना है अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को जो है बनाना है, समाज को, अपने नेशन को बिल्डअप करना है, तो ज़रूरी है कि जो है हम थोड़ी सी कुर्बानी दें। ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी बड़ा महंगा शौक़ है, हर किसी के बस की बात नहीं रहती, मगर हमको जो है चाहिए कि ईमानदारी से हर चीज़ करे, वालिदैन का रिस्पेक्ट कर सके, कि मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहे। मोबाइल एक जो है बहुत बड़ा फितना है, मोबाइल से जो है जितना कम वक्त मोबाइल इस्तेमाल करें बहुत अच्छी बात है। अपने वालिदैन का लिहाज करिए, अपने असातिज़ा का लिहाज करिए। और ख़ास तौर पर बात जाने से पहले ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो है also I would like to appreciate and thank all the efforts of the Confederation of the Minority Institute, your organization जो है for motivating the students with the token of appreciation, एक ग्रेटिट्यूड का जो है आप लोग बुला के यहाँ पर एक मदद सही कर रही है, यकीन बहुत बड़ी जो है मैं उनका जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और दीगर स्कूल्स के मैनेजमेंट का, पेरेंट्स का भी जो है कि आप लोग जो है इतनी सारी लगन से अपनी कुर्बानियों से जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ यकीनन जो है। और इस एग्ज़ाम का जो है मैं उनके लिए, इस तंजीम को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यकीन एक बहुत बड़ा कारनामा किया है कि वालिदैन को बुलाकर जिसने आपकी हिम्मत अफजाई की। यकीन जो है तमाम सेहरा जो है हमारी कामयाबी का, हमारे तलबा की कामयाबी का जो है वालिदैन को जाता है। तो डेफिनेटली जो है और जो है आप जो मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को बुला के, डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में जो है बहुत सारा जो है ये चीज़ें काम आएंगी, आपकी हिम्मत अफजाई की है। बिकॉज माई डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू से दैट जो है एजुकेशन इज़, जैसा हुज़ा साहब बताना चाह रहे थे कि जो है आप किसी भी उम्र में तालीम हासिल कर सकते हैं।
once you get married آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو you quit the studies. ایسا نہیں کہ جو ہے آپ جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں being a married وہ لوگ جو ہے ابھی IAS IPS میں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. Because my dear students, education is a journey, is not a destination. تو جو ہے یقیناً جس کا جو ہے ہماری زندگی سے جو ہے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. my dear students, آپ لوگ جو ہے ہم لوگ زیادہ وقت لے لیے ہیں. ابھی اور قابل لوگ آنے والے تھے یہاں پر نہیں ہیں یہاں آ سکے کسی وجہ سے. تو آپ سنیے انورگا صاحب کو سنے ہیں, ہدایت صاحب کو سنے ہیں, فاروق صاحب کو سنے ہیں. اور میں جو ہے آپ کی اور آپ کی اس فنکشن کی آپ کے ایوارڈس کے بیچ میں جو ہے میں زیادہ نہیں آنا چاہتا ہوں. پھر جو ہے بلا کے اتنی جو ہے I am very much honored and privileged to be the part of this. آپ نے بلا کے اتنی عزت افزائی اور ہمت افزائی کی ہے میری. ڈیفینیٹلی بچوں میں ایک بات اپنا جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے میں بھی جو ہے کم لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہوں. بیکاز I was a part of the تلنگانہ موومنٹ. تلنگانہ جب الگ کرانے کا جب موومنٹ تھا تو I was a part of تلنگانہ ایجوکیشن. میں نے جیل کو بھی گئے ہیں, میں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں کیونکہ جو ہے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. میں جب جا کے جو ہے پھر یہ عہدے پہ آیا ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی لائف میں جو ہے قربانیاں ڈیڈیکیشن آپ سب کو دینا پڑتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. ڈیفینیٹلی جو ہے پھر آپ لوگ اس چیز کو جو ہے بنا لیجیے جو ہے کوئی بھی چیز آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتی جب تک کہ جو ہے آپ اس کو حاصل نہ کریں. آپ کو اپنے لگن سے اپنی قربانیوں سے اپنی انٹرسٹ سے جو ہے آپ اس کو حاصل کریں. ڈیفینیٹلی ونس اگین آئی تھینک قومی اور جتنے بھی لوگ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہوئے سب کو جو ہے میں تہ دل سے جو ہے ونس اگین آئی تھینک آل دا پیپل for inviting and giving this opportunity to speak before you. پھر ایک بار میں جو ہے تمام بچوں کو جو ہے کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ اتنے اہم مارکس لے کے میریٹریس مارکس سے پاس کریں. ونس اگین آئی وش یو فار دا فیوچر انڈیورس. آپ انٹرمیڈیٹ میں بھی جو ہے ایسی پاس کریں آپ جو ہے ہماری قوم کا نام روشن کریں, سماج کا نام روشن کریں اور ہمارے دیش کا نام روشن کریں. جے ہند, جے تلنگانہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फेडरेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कोमी का एक एसएससी मेरिटोरियस अवार्ड फंक्शन KLN प्रसाद ऑडिटोरियम लकड़ी के पुल पे मुनक़्क़द हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ इसका इनेकाद हुआ, जिसके चीफ गेस्ट जनाब तारिक अंसारी साहब चेयरमैन उर्दू माइनॉरिटी कमीशन थे, और ऐसे उदा साहब गेस्ट ऑफ ऑनर। एक 194 स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया गया, 22 स्कूल्स मेंबर स्कूल्स के बच्चों को। यहाँ पे इसकी खुसूसियत रही कि हर सब्जेक्ट में जो भी बच्चा टॉपर रहा स्कूल टॉपर के दी, हर स्कूल में 7 से 8 बच्चों को अवार्ड दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेंबर का, पेरेंट्स का जो इसको कोऑपरेट करे, और आज के हमारे कन्वीनियर जनाब हिदायत अली ख़ान साहब है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आज इसको जैसे मुखातिब करें। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम कौमी कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का 2024 जो मुनक़्क़िद किया गया है KLN प्रसाद ऑडिटोरियम में। माशाल्लाह द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल, और चीफ गेस्ट हमारे प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो करे तारिक अंसारी साहब काफ़ी अच्छा बच्चों को मोटिवेट किए, और हुदा साहब भी स्टैटिस्टिकल डाटास भी एक्सप्लेन करते हुए, और हमारे प्रेसिडेंट फ़ारूक साहब भी काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए है। और इस साल यूजुअली टॉपर्स को 1-2 बच्चों को देते थे, बट दिस टाइम वी हैव गिवन स्कूल टॉपर अलॉन्ग विद द स्कूल टॉपर, लैंग्वेज टॉपर्स प्लस मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल। सो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, ऑडिटोरियम भी काफ़ी फुल रहा, पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी, द स्टूडेंट्स वेरी हैप्पी। माशाल्लाह से 65% गर्ल्स स्टूडेंट्स थे, 35% वेर द बॉयज़, एंड मैक्सिमम पेरेंट्स गॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस। थैंक यू। वाकई आज का प्रोग्राम गैर मामूली था, क्योंकि शहर में ऐसे प्रोग्राम मेरिटोरियस अवार्ड फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम था ये 7 स्टार के नाम से इसको हम बोल सकते हैं। हमने एक टॉपर को भी दिया है स्कूल के, फिर उसके बाद पूरे सब्जेक्ट्स और पूरे लैंग्वेजेस को भी, तो इस लिहाज से हमारा फंक्शन 7 स्टार हो गया है। और हमारे जिन हजरात आए थे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, ये गैर मामूली शख्सियतें थी, और इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया। थैंक यू। वरकातुहू। माशाल्लाह आज KLN प्रसाद ऑडिटोरियम में बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बच्चों के पीछे जो सक्सेस होती है वो माँ बाप की होती है, और साथ ही साथ असातिज़ा की होती है। हमेशा पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, ये कौमी की जानिब से आज वेरी फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स को अवार्ड दिया गया, ताकि पेरेंट्स भी जज्बा उनमें पैदा होना चाहिए कि वो उनकी जो कारकर्दगी हुई है, जो लोग बच्चों के पीछे जो मेहनत किए हैं, वो उन्हीं को इनाम जाता है। तो इस सिलसिले में कौमी ने एक नया पैगाम दिया है कि सब तमाम लोगों को, बच्चों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर वो बच्चा उर्दू, हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, या उर्दू हो, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, तो हर एक में एक ना एक बच्चा जो टॉप होता है स्कूल के जानिब से, जो स्कूल में आता है उसको प्राइज़ दिया गया है। जितने भी टॉपर्स हैं 7 टॉपर्स को दिया गया, स्कूल के टॉपर्स को दिया गया। माशाल्लाह आज के बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान थे, और मोटिवेशनल स्पीकर थे, और कन्वीनर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कारकर्दगी अंजाम दी, और साथ में साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब जो कौमी के हैं MS फ़ारूक साहब ने इसको 4 चांद लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शाम साहब के ऊपर पढ़ने आते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आज 10th क्लास के मेरिटोरियस अवार्ड दिए गए हैं, और हर साल की तरह इस साल भी मेरिटोरियस अवार्ड दिए गए, मगर इसमें एक खूबी ये थी कि सब्जेक्ट नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हम इस साल पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करे हैं, और पेरेंट्स को ऑनर करें, क्योंकि पेरेंट्स जो है एक बैकबोन होते हैं, जो बच्चों को जो है उनको उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हम ये तय किए थे कि भाई इस साल पेरेंट्स को हम
ज़रूर जो है फेलिसिटेट करेंगे। इंशाल्लाह इरादा ये है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स के साथ में हम टीचर्स को भी हम इंशाल्लाह ताला फेलिसिटेट करेंगे, ताकि टीचर्स को मोटिवेशन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा करोड़ा करम है कि बहुत ही बहुत उम्दा आज इजलास हुआ है और एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम मुनक़द करे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।